हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज जॉश एंड अपुरुम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो देयर आर यूजुअली टू टाइप्स ऑफ आउटकम्स। ऑप्शन 1 वेयर वी आर ओवरकम्ड बाय द प्रॉब्लम एंड ऑप्शन 2 वेयर वी ओवरकम द प्रॉब्लम। इन दोनों सिनेरियोज में पता है एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस इज फेथ। इसी फेथ को आज पास्टर जॉशुआ डेविड गहराई से हमें समझाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने। आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग चर्च, वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। आइए आज जब आराधना करेंगे तो परमेश्वर को हर रोज की तरह धन्यवाद दें। सारी जो हमारा क्रिएशन है ये परमेश्वर पर अपनी आंखें लगा कर रखता है। हालेलुया। एवरी लिविंग बीइंग, एवरी part of this creation looks up to the Lord. Hallelujah. Looks up to its creator. And today we come with a heart of thanks before the Son of God. Hallelujah. Because of the love that He showered upon us. वो प्रेम जो यीशु ने हम पर उंडेल दिया, उस प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु का। Hallelujah. Amen. Come on, if you're excited with me, lift up a shout to Jesus. जहाँ कहीं भी आप हो, यीशु मसीह के नाम को पुकारे। Hallelujah. And tell it to Him that हर चीज, हर प्रोविजन हमारा परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। एंड वी थैंक यू लॉर्ड। हर सुबह सनराइज के साथ प्रभु जी एक आशा तू हमें देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। कम ऑन, लेट्स जस्ट वर्शिप गॉड एंड थैंक यू। Clap our hands. Come to you with a heart of thanks, For your love, to be a living sacrifice. brought with love. Come to you with a heart of thanks, For your love, an offering of all we are. brought with love. All creation looks to you. All provision comes from you. And every sunrise, hope shines through. For your mercy, we thank One more time, all creation. All creation looks to you. All provision comes from you. And every sunrise, hope shines through. For your mercy, we thank you. Come to you with a song of praise, For your love, the music of our soul's delight. brought with love. Come to you with a song of praise, For your love, sounds of joy and gratefulness. brought with love. And all Creation looks to you. All provision comes from you. And every sunrise, hope shines through. For your mercy, we thank you. creation, All creation looks to you. All provision comes from you. And every sunrise, hope shines through. For your mercy, we thank you. all creation is looking to you, Lord, and all provision comes from you. All creation looks to you, all provision comes from you. In every rhythm we thank you for your love. All creation looks to you. all provision comes from you. In every rhythm we thank you for your love. All creation looks to you, all provision comes from you. In every season we thank you for your love. All creation looks to you, All provision comes from you. In every
Lord. Come on, ताली बजाकर उसकी आराधना करें. And tell it to him, Lord, my provision comes from you. Lord, my hope is in you alone. Thank you, Jesus. This year 2021, we want to declare today that it's a year of the favor of God. Hallelujah. परमेश्वर के अनुग्रह का वर्ष है ये. Hallelujah. 2021 ये साल परमेश्वर के हाथों में दे दे. Hallelujah. Let's declare as we sing this song prophetically. These are the days of Elijah. These are the days of Moses. Hallelujah. These are the days of Ezekiel. And these are the days of David. Hallelujah. परमेश्वर ने वादा किया कि हमारे बीच में आकर हमारे साथ निवास करेगा. हालेलुया. इस साल यही उम्मीद के साथ इस गीत को हम गाएंगे. We declare this prophetically today, oh God, as we sing this unto you. Thank you, Jesus. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel. These are the days of Ezekiel, the tribals becoming a flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, all the fields are in white in your word. And we are the laborers within your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. We're going to sing this one more time. These are the days of Ezekiel. And these are the days of Ezekiel, the tribals becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, all the fields are as white in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. We're going to declare there's no one like you, Lord. There's no God like Jehovah. 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 There's no God
hands and bless the Lord. Oh Father, we declare a year of jubilee, a year of rejoicing in you, Lord. Thank you, Jesus. A year full of your faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु जी तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू योग्य है प्रभु, हर स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, गौरव के योग्य प्रभु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. There is no one like you, no one like you, Lord. There is no one like you, Jesus. You were lifted above all.
सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 call and pray. Thank you, Jesus. On every eye lifted up to the King of Kings and the Lord of Lords. Worship the great I am, the one who is seated upon the throne today. He reigns in our hearts. Thank you, Jesus. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Forever we sing. Forever we sing. Glory to you, Lord. Jesus. The heavens cry out. Beauty of the risen Lamb of God, seated on the throne. Yes, Jesus. 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 Thank you, Lord. We lift up your name, Lord. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Prashansa ho, prashansa ho. How great are you? How great are you, Lord? Thank you, Jesus. Father, we know that there is a promise that we hold on to from your word, that you're going to come back for us, Lord. दोबारा हमारे लिए आएगा प्रभु, हमें ले जाने को ऐसा. That's why we worship you, O God. For you are a good God. Your promises are yes and amen. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Prashansa howe Prabhu Yeshu ki nama prashansa howe Prabhu Yeshu ki nama Yes, we give you glory. We give you glory. How great thou art. We give you blessing and glory and honor and praise. Forever and forever, we give it all to Oh, you. You are great, your name is praised. worthy to be praised. Glory to you. You are great. Thank you, Jesus. To him who sits on the throne, to the Lamb of God who was slain, but today reigns. Lord, we join with all the angels
angels surround your throne. Oh, the four living creatures and the 24 elders. Together we cry out, we blessing and glory and honor to you. To you and you and you To him who sits on the throne and unto the Lamb. Come on, everybody, lift up your hands, bow down before him, kneel before him. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits, to him who sits on the throne and unto the Lamb. One more time we cry to him who sits on the throne and unto the Lamb. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing, be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing, Lord, be blessing and glory and honor and be blessing, be blessing and glory and honor and power. 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 Be blessing and glory and honor and power forever. Forever. Take all the praise, all the honor, and all the glory forever and ever, Lord. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है। यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको देते हैं। जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं। उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। We just thank you, Lord, because you're so worthy. Thank you for the cross.
the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. 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 Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरा यह मानना है कि पिछले पूरे हफ्ता आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को भला चंगा और सुरक्षित पाते आए हो। यदि आपके जीवन में किसी संकट से होकर आप गुजर रहे हैं, बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं या कोई भी प्रकार के परेशानी से होकर गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में ये परेशानी इतनी बड़ी है कि आपके सुख और चैन को इसने छीन लिया है आपसे, तो आज का वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है ये आपके सोल को फीड करेगा, ये आपकी आत्मा को फीड करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के वचन पर आज विश्वास रखोगे तो यह वचन आपके जीवन के दिन को बदल कर रख देगा। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है हमारे जीवन को बदल कर रख देने की, हमारी परिस्थितियों को बदल कर रखने के लिए। इसीलिए तो हम ये आराधना के गीत गा रहे थे, इसलिए तो हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है। हम जानते हैं उसके कान अपने बच्चों की दुहाई की ओर खुले हैं। हम जानते हैं कि जो उसकी ओर आंखों को लगाते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता, परंतु परमेश्वर उनको सुनता है। आज मैं आपको विश्वास के विषय में सिखाना चाहता हूं। आम विश्वास नहीं, एक ऐसा विश्वास जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उंडेला जाता है, एक ऐसा विश्वास जो सब्सटेंस है, एक ऐसा विश्वास जो प्लेटफॉर्म बनता है जिस पर मिरेकल आधारित होता है, एक ऐसा विश्वास जो अगुवाई करता है और मिरेकल उसको फॉलो करता है, एक ऐसा विश्वास मेरे प्यारों जो हर भय से आपको मुक्त करता है, एक ऐसा विश्वास जो बाप की ओर से आपको मिलता है। परमेश्वर का सा विश्वास जब हमारे जीवन में आता है वो क्या कुछ नहीं कर जाता है। आज
जब आप इस वचन को सुन रहे हो तो अपने हृदय को खोलिए, इस वचन को ध्यानपूर्वक स्वीकार करिए। जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं, यदि यह विश्वास के साथ आपके हृदय में बसेगा तो 100 गुना फल लाने पाएगा। पर आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में चले, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन कि ये शब्द को जीवन बनाने वाला आपका आत्मा है, ये शब्द को आत्मा बनाने वाला आपका आत्मा है। आज सुबह जब तेरा चर्च एक साथ आया है प्रभु, ऑनलाइन परमेश्वर हम भक्ति के लिए एक साथ आए हैं, मैं तुझसे प्रार्थना करता यीशु के नाम में मेरे होठ और जबानों को छू ले। धन्यवाद, तूने मेरा अभिषेक किया। आज सुबह प्रभु मैं अपने अभिषेक को स्वीकारता हूं और यीशु के नाम में आई स्टैंड हियर बाय फेथ ओ लॉर्ड। और यीशु के नाम में जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं, ये शब्द बंधनों को तोड़ने पाए, ये शब्द कमजोरों को बल दे, ये शब्द रोगियों को चंगाई दे, ये शब्द परमेश्वर निर्बलों को ताजा करे और नया बल दे। जो भयभीत है उनको विश्वास देने पाए पिता परमेश्वर, और जो पिता से दूर है उन्हें स्वर्गीय पिता से मिलाने पाए। ओ फादर, आई डिक्लेयर this time as a time of the kingdom of God. I declare that the kingdom of God is here. आज तेरा आत्मा परमेश्वर लोगों के घरों में लोगों को छूने पाए, जब वे सुनते हैं विश्वास आने पाए, विश्वास क्रिया करने पाए, और यीशु तेरा काम उनके जीवन में होने पाए। I thank you for what you're going to do. यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूं, आमेन, आमेन। माय फ्रेंड्स, गेट रेडी। आज सुबह परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत बात करने जा रहा है। वो आपकी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह सामर्थ है। बाइबल हमें बताती है वो अपने शब्द को भेजता है और हमें चंगा करता है। बाइबल हमें यह बताती है कि उसने अपने शब्द को भेजा और जब अंधियारा था तो बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सी, द वर्ड ऑफ गॉड हैज अ क्रिएटिव पावर। परमेश्वर का वचन नीति वचन 4 अध्याय में 20 वचन से आगे ये कहता है, जिनको मेरे वचन प्राप्त होते हैं उनके पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण बनते हैं और उनके लंबी आयु का कारण बनते हैं। ओ हालेलुया। यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं वे जीवन और आत्मा है। मेरे प्यारो, आज मरणहार परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, जो वचन आप सुनने जा रहे हो, यह वचन आपकी परिस्थिति में परमेश्वर के जीवन को लेकर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आएगा, और आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। एक बार की बात है, मैं अपने मित्रों के साथ में स्वानेज बीच पर गया था, जो कि इंग्लिश चैनल में यूके में है। वहां पे जब हम समुद्र तट पर गए थे तो हम लोग सब पिकनिक मनाने के लिए गए थे। मेरे 7-8 दोस्त मेरे साथ थे और हम लोग वहां पे मजा करने के लिए गए थे। हम लगभग दोपहर के समय में स्वानेज बीच में पहुंचे। जब हम पहुंचे थे वहां पे तो पानी जो था वो सागर में अंदर गया हुआ था और हम सतह पे काफी दूर तक रेत में खेल रहे थे। जब हम लोग वहां जा रहे थे अपने बॉल को लेकर, फुटबॉल लेकर हम लोग खेलते चले जा रहे थे, तो मैंने क्या देखा, मछुआरों का एक जहाज वहां पे रेत में धंसा हुआ था। वो होगा लगभग 20-25 फीट लंबा, इतना बड़ा एक जहाज छोटा वहां पे रेत में धंसा हुआ था। मैं गया और उसको पूरी ताकत लगाकर हिलाने लगा, वो इतना सा भी नहीं हिला। मेरे तमाम 7-8 दोस्त आए, सब लोग ने ताकत लगा के एक साथ हिलाने की कोशिश की, वो इतना भी नहीं हिला, वो पूरी रीति से रेत में धंसा हुआ था। आखिर थोड़े समय बाद हम उसे छोड़कर निकल गए, अपना खेल खेले, खाना वाना खाए, पिकनिक किए। शाम को लगभग 4-4:30 बजे के आसपास पानी का भर्ती आने लगा। लोग इसे ज्वार भाटा कहते हैं। भर्ती का समय होने लगा और पानी सागर से सतह पर वापस आने लगा। जब वो पानी वापस आने लगा, उस नौका से थोड़ी दूर में हम लोग खेल रहे थे, वहीं पर मैं देखने लगा कि वो पानी इस नौका के चारों ओर आया। फिर मैंने क्या देखा, इस नौका के चारों ओर पानी जो है उसकी सतह पर वो घेरने लगा। थोड़ी ही देर में जब मैंने देखा तो क्या देखा, अब ये जो नौका जो थी ये थोड़ी थोड़ी हिलकोरे खा रही थी, क्योंकि पानी ने उसको उठा लिया था। जब अंधेरा होने लगा और हम अपने गाड़ी की ओर लौटने के लिए जाने लगे, तो जाते जाते फिर से मैं उसी नौका के पास से गया और अब की बार मैंने उसे लात मारा। जैसे ही मैंने उसे लात से पुश किया, वो नाव थोड़ी सी आगे गई। वाह, मैं रुक गया। मैंने रुक के देखा, मतलब वाह, ये हम 8 लोग मिलकर धक्का मार रहे थे, इतना सा भी नहीं हिला, और अभी सिर्फ मैंने अकेले ने लात मारा और ये नाव हल गई। मैंने देखा क्या हुआ, उस नाव
जो वो रेत के अंदर धसी हुई थी, रेत और नाव के बीच में पानी आ गया था। वो पानी ने पूरा वेट अपने ऊपर उठा लिया था और अब थोड़ा सा पुश उस नाव को हिला देता था। उस दिन एक बात समझ में आई, परमेश्वर की आत्मा की ओर से एक बात मेरे अंदर घुस गई और वो बात ये थी, पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा, बेटा जब कभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए खड़ा होगा, एक बात याद रखना, लोगों की परिस्थिति कितने भी समय से कठिन क्यों न रही हो, कितने भी भयंकर परिस्थिति क्यों न रही हो सकता है कई सालों से वो उस समस्या में जूझ रहे और धसे हुए हैं और वो समस्या उनको छोड़कर नहीं जाती। हो सकता है कि वो समस्या बहुत भयंकर है, उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा बढ़कर ताकतवर है, लेकिन बेटा याद रखना, जब तो सुसमाचार लेकर खड़ा होगा, वो पवित्र आत्मा एक बाढ़ लेकर आएगा और वो पवित्र आत्मा की नदी आएगी और वो लोगों की समस्या और लोगों के बीच में आएगी। जैसे ये पानी नाव और रेत के बीच में आ गया, वैसे पवित्र आत्मा लोगों की समस्या और लोगों के बीच में आएगी। और जब तू सुसमाचार प्रचार करेगा, वो नाव के जैसा जब वो जल आ गया उस रेत और नाव के बीच में, वो नाव को अब एक व्यक्ति ने लात मारा और वो हल गया। बिल्कुल वैसा ही प्रभु कहने लगा मुझसे, बेटा जब तू सुसमाचार प्रचार करेगा, वो समस्याओं के बीच पवित्र आत्मा एक बाढ़ ले आएगा, मेरे नाम से एक आज्ञा करेगा और उनकी समस्याएं उनको छोड़कर निकल जाएगी। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, आज जब मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, लॉर्ड मैं तेरे लोगों को क्या संदेश दूं, अगेन पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात याद दिलाई। मैं नहीं जानता कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आप बहुत समय से अपनी समस्या में फंसे हो, फिर वो बीमारी हो, वो श्राप हो, वो जॉबलेसनेस हो, वो आर्थिक समस्या हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, वो कैसी भी समस्या क्यों ना हो, या दुष्ट आत्मा का कब्जा हो जो बहुत समय से आपको छोड़ नहीं रहा और सता रहा है। आज सुबह जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, वो पवित्र आत्मा एक बाढ़ आपके जीवन में ले आ रहा है। रिसीव दिस वर्ड बाय फेथ। ये वचन जब आप विश्वास से स्वीकार करोगे, वो पवित्र आत्मा बाढ़ लेकर आएगा और क्या होगा, वो पवित्र आत्मा आपकी समस्या को आपसे दूर करेगा। आज परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को हटाने पर है। देखिए परमेश्वर के वचन से मत्ती रची सुसमाचार इसका 14 अध्याय और इसके 22 पद से आगे एक घटना बाइबल हमें बताती है। उस घटना के विषय में पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार इसका 14 अध्याय और इसके 22 वचन से लेकर 33 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मैं इंग्लिश बाइबल में से पढ़ूंगा, आप अपने अपने बाइबल में देख लीजिए। बाइबल ये कहती है, इमीडिएटली जीसस मेड द डिसाइपल्स गेट इनटू द बोट एंड गो ऑन अहेड ऑफ हिम टू द अदर साइड व्हाइल ही डिसमिस्ड द क्राउड। आफ्टर ही हैज डिसमिस्ड देम, he went up on a mountain side by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were very terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down off the boat and walked on the water, came down towards Jesus. But when he saw the wind and he was afraid and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Then he cried out, "Lord, save me." Immediately in verse 31, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when he climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." प्यारो, इस परमेश्वर के वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इस पर आपने संदेश सुने होंगे, लेकिन आज मैं विश्वास के विषय में इस शास्त्र भाग से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल बताती है यहां पे 22वें वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को नाव पे बैठाकर उनसे कहा कि आप झील के उस पार जाओ।
और यीशु मसीह क्राउड को अलग कर कर अकेले पहाड़ पर चले गए। सुनिए, बाइबल हमें बताती है चेले अपने आप से नाव में बैठ के झील पर नहीं गए, यीशु मसीह ने उनसे जाने के लिए कहा। इट वॉज इन द ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह की आज्ञा के पालन में चेले नाव में बैठकर जाने लगे। और जब वो जाने लगे, बाइबल कहती है जब वो कंसिडरेबल डिस्टेंस में चले गए, दूर चले गए सतह से, तब क्या हुआ? तूफान ने उन्हें घेर लिया। मेरा सवाल यह है, परमेश्वर जब ये आपकी आज्ञा मानकर गए थे तो तूफान क्यों आया? Why did storm hit their life when they had obeyed God? मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवन में यीशु की आज्ञा मानने के बाद भी तूफान आता है, प्रार्थना करने के बाद भी तूफान आता है, विश्वास करने के बाद भी तूफान आता है, बाइबल पढ़ने के बाद भी तूफान आता है, कलीसिया में संगति करने के बाद भी तूफान आता है, एक दूसरे के साथ विश्वास में उपवास करने के बाद भी तूफान आता है, वो आर्थिक रूप से परमेश्वर के राज्य में सो करने के बाद भी तूफान आता है। और ऐसे समय में एक सवाल दिमाग में आता, क्या फायदा हुआ मेरा प्रार्थना करके? क्या फायदा हुआ मेरा वचन पढ़ के? क्या फायदा हुआ प्रभु के इबादत को करके, वर्शिप करके? और ये तूफान तो मेरे जीवन में फिर भी आया। बट वेट अ मिनट, There is more to the story. ये तूफान में स्टोरी खत्म नहीं होती, परमेश्वर की आराधना में ये स्टोरी खत्म होती है। So we must know, अगर हम तूफान में घिरे हुए हैं, यीशु की आज्ञा मानकर तूफान में चल रहे हैं, यीशु की आज्ञा मानकर कठिन समय में आ गए, यीशु की बात सुनने के बावजूद कठिन समय में आ गए, तो हियाव मानकर दृढ़ हो जा, क्योंकि ये कठिन समय तेरे जीवन का अंत नहीं है, परमेश्वर की महिमा तेरे जीवन का अंत होगी। हालेलुया। चेलों को लगा उनका जीवन खत्म होने वाला, उनको नहीं मालूम था कि उनके जीवन में एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जो इतिहास को बदलने जा रहा है। जो आज से पहले असंभव था वो संभव होने जा रहा है। They never knew that this storm is bringing them an opportunity to see that God is a God of impossibility। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तूफान में आप घिरे हो, जिस समस्या में आप घिरे हो, जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है और आपको आशाहीन परिस्थिति में ढकेल रहा है, वही परिस्थिति आपके लिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते स्वर्गीय जीवन में एक सामर्थी गवाही बनने को जा रही है। हालेलुया। इन चेलों के जीवन में ऐसा ही हुआ। When I read into the Bible, something I begin to understand। यीशु ने उनको आज्ञा दी, तुम जाओ। वे जाने लगे और तूफान में फंस गए। Listen my friend, let me tell you something very interesting। जब भी विश्वास की बात आती है ना, विश्वास किसी किसी का परिस्थिति पे आधारित होता है, बट धन्य है वो जिनका विश्वास परिस्थिति पर नहीं पर भेजने वाले के शब्द पर आधारित होता है। धन्य है वे विश्वासी जिनका विश्वास अपनी हालात पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं उनका जीवन बदल जाता है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में, उनकी आत्मा में परमेश्वर नए कामों को करता है। माय प्रेयर इज कि हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो अपना विश्वास अपने हालात पर रखे, पर हम अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखना सीखे। रिलीजन और रिलेशनशिप में एक अंतर है। मालूम है रिलीजन क्या कहता है? रिलीजन कहता है गॉड इज पावरफुल। इंडिया में किसी को भी खड़ा करके बोलो क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हर एक व्यक्ति बोलेगा हाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि किसी मुस्लिम को रुकाकर पूछो क्या अल्लाह सर्वशक्तिमान है, वो बोलेगा हाँ अल्लाह सर्वशक्तिमान है। यदि किसी हिंदू भाई को रुकाकर पूछो और उनसे कहो क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बोलेगा हाँ सर्वशक्तिमान है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को पूछो कि क्या आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कहेंगे हाँ वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन आपको मालूम वो जो सर्वशक्तिमान है कहता है उसमें और रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में फर्क है। रिलीजन ये कहता है गॉड कैन डू ऑल थिंग्स, पर रिलेशनशिप, रिश्ता ये कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू नो, परमेश्वर के सब कुछ करने की सामर्थ एक इंसान के जीवन के द्वारा फ्लो होने लगती है। दैट इज वेयर रिलेशनशिप कम्स इन पिक्चर।
मेरे प्यारों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास परमेश्वर जो कर सकता है वो आपके द्वारा करवाता है। दैट इज द पावर ऑफ फेथ। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा बहता है, परमेश्वर का अधिकार हमारे द्वारा बहता है, परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरी होने लगती है, और जो परमेश्वर करता है वो हम करने लगते हैं। यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ वॉकिंग इन फेथ इज यू बिलीव व्हाट गॉड बिलीव्स, यू सी व्हाट गॉड सीज, एंड you do what God does, you get what God gets. हालेलुया। फिर एक बार बताऊंगा, विश्वास में चलने के चार अद्भुत परिणाम क्या है। आप वो देखते हो जो परमेश्वर देखता है, आप वो सोचते हो जो परमेश्वर सोचता है, आप वो बोलते हो और वो करते हो जो परमेश्वर बोलता और परमेश्वर करता है। और इतना ही नहीं, आप वही रिजल्ट्स पाते हो जो परमेश्वर को मिलता है। डू यू नो समथिंग इनक्रेडिबल अबाउट फेथ इज, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन उतना ही प्रभावशाली होता है जब विश्वास में आपके मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जो हासिल कर सकता है, वही सेम चीज है जब विश्वास में आपके मुख से निकलता है, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स को वो हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के रिश्ते में बढ़ना है। जब मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ता हूं, यू नो, बाइबल सेज, मरकुस इसके 9वें अध्याय के 23वें वचन में, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर द वन हु बिलीव्स। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इमेजिन, बाइबल इज सेइंग सब कुछ संभव है। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। वो ये नहीं कहता पास्टर के लिए, वो ये नहीं कहता अपोस्टल के लिए, वो ये नहीं कहता प्रॉफिट के लिए या इवेंजलिस्ट के लिए या टीचर के लिए या एक कोई बहुत बड़े राजा के लिए या कोई धनी व्यक्ति के लिए। बाइबल सिंपली सेज विश्वास करने वाले के लिए। आज विश्वास कोई भी अफोर्ड कर सकता। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति विश्वास कर सकता, और एक महलों में रहने वाला विश्वास कर सकता, वो एक तंदुरुस्त व्यक्ति विश्वास कर सकता, और एक जो मौत के बिछौने पर लेटा है, अंतिम सांसें ले रहा है, वो विश्वास कर सकता। सुनो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग यू बिलीव इज पॉसिबल। क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव? क्या तू विश्वास करता है? आज परमेश्वर का वचन में जब मैं देखता हूं, मरकुस इसके 6वें अध्याय के 45 वचन में, यहां भी हम सेम वारदात को देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह ने चेलों को नाव में बैठाकर उनको विदा किया। वे तूफान में घिर गए और यीशु एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ पर चढ़ गए। नाउ वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैं इसको ये पढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता, whenever you set to obey Jesus Christ, opposition comes. This is the divine principle. एक बात जान लो, जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए कदम डालोगे, विरोध आएगा, अपोजिशन आएगा, लेकिन अपोजिशन से घबराना नहीं। ये अपोजिशन आपकी बुलाहट को क्रेडिबल बना देता है, ये अपोजिशन आपके अनॉइंटिंग को क्रेडिबल बना देता, ये अपोजिशन आपके चुने जाने को एस्टैब्लिश कर देता, ये अपोजिशन आपके बुलाए जाने को कंफर्म कर देता। इन अपोजिशन से मत भागो। विश्वास इन अपोजिशन पर जय देता है। विश्वास इन आने वाली समस्याओं के ऊपर एक ब्रिज बन जाता है। विश्वास आपको पंख दे देता है कि आप इस विपत्ति के ऊपर उड़ जाते हो। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, फेथ गिव्स यू एबिलिटी टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। परमेश्वर के वचन में जब मैं देखता हूं, ओ यू शुड नेवर फॉरगेट, जब चेलों को यीशु मसीह ने भेज दिया, यीशु एकांत में प्रार्थना करने चले गए और चेले तूफान के मद्देनजर फंस गए। जब तूफान में वो फंस गए और यीशु मसीह पहाड़ पे था, द बाइबल डिक्लेयर समथिंग वेरी इनक्रेडिबल। यीशु ने चेलों को देखा। वाओ! जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, मार्क चैप्टर 6 वर्स 47 सेज जीसस वाज ऑन द लैंड। यीशु मसीह भूमि पर था और चेले जो थे वो बीच भंवर में फंसे हुए थे, वो नदी में बीच में थे। और ऐसे समय में बाइबल सेज इन वर्स 48, Jesus saw disciples। मेरे प्यारो, कोई चेलों ने यीशु को आवाज नहीं दी थी, कोई चेले प्रार्थना नहीं किए थे, वे घबराए हुए थे, अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। But the Bible says God saw them। तुम्हें एक बात मैं बताना चाहता आज कुंजी, जिनको यीशु भेजता है उन पर नजर रखता है।
ओ हालेलुया। यदि प्रभु ने आपको भेजा है, उसकी नजरें आप पर लगी है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, उसकी नजरें आप पर लगी है। ये जान लो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लोग आपको तुच्छ जान सकते हैं, कोई आपको जानेगा अलग अलग रीति से, कोई आपको छोड़ देगा, लेकिन एक बात जानो, बुलाना वाला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने आपको सेवा में बुलाया है, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। जिसने आपको रचा है, वो आप पर नजर बनाए रखेगा और उसकी नजरें आप पर लगी रहेगी। My friend, the Bible says Jesus saw them when they were in the storms. कई बार जीवन में ऐसे तनावपूर्ण परिस्थिति आ जाते हैं जहां हमको पता ही नहीं होता, हमको लगता किसी का नजर हम पे नहीं है। But do you know Jesus is looking at you? इस वक्त जब आप अकेलेपन, तन्हाईपन और ऐसे भयंकर परिस्थिति से जा रहे जो घबरा देता और सोच रहे कल क्या होगा, लेट मी टेल यू, जीसस इज वॉचिंग। यीशु आपको देख रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट आई अंडरस्टैंड, फेथ मेक्स यू वॉक ओवर इम्पॉसिबिलिटीज। हालेलुया। विश्वास आपको असंभव परिस्थिति के ऊपर चलना सिखा देता है। जब मैं पढ़ता हूं मत्ती इसके 14 अध्याय के 31 वचन में, और जब वो 14 अध्याय की स्टोरी को पढ़ता हूं 22वें वचन से लेकर 33 वचन तक, तो हम उसमें देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया। उसी तूफान में यीशु पानी पर चलता हुआ आया। चेले घबराए हुए, यीशु मसीह ने उन्हें आवाज दी और उन्हें कहा डरो मत, मैं हूं। चेले सोच रहे भूत है। यीशु को ऐसा मत डरो, मैं हूं। और जब पतरस ने यह बात सुनी कि यह प्रभु यीशु है, तो पतरस ने यीशु को देखकर यह कहा, ओ लॉर्ड जीसस, यदि आप है तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी पे चलूंगा। ही डिजायर्ड फॉर समथिंग। और जैसे ही उसने यह बात कही, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कम। वन वर्ड, कम। हिंदी में लिखा है आ, या हम जैसे कहते हैं आजा। वन वर्ड, कम। वो एक शब्द में इतनी सामर्थ्य थी, वो विश्वास के रीति में पतरस के अंदर घुस गया। और जब उसने उस शब्द को ले लिया, कम, समथिंग हैपेंड। समथिंग हैपेंड। बाइबल कहती है पतरस नाव से बाहर उतरा और पानी पे चलता हुआ जाने लगा। देन बाइबल से समथिंग, वो पानी पे चलता चलता जा रहा, यीशु के करीब आ गया और तब उसने लाटों को आजू बाजू देखा, तूफान को देखा और घबरा गया। और जैसे ही घबरा गया वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ओ प्रभु मुझे बचा। यीशु ने हाथ देकर उसको ऊपर उठाया और एक बात उससे कही, ओ ye of little faith, why did you doubt? उससे बोला, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? इसका मतलब यह है वो अल्प विश्वास की स्थिति में भी पानी पे चलता हुआ आ रहा था। My friend, little faith can make you walk on the greatest storm of life. ये छोटा सा विश्वास तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े तूफान पर चला सकता है। पतरस छोटे से विश्वास से, एक वर्ड का विश्वास था, कम, इस वर्ड का विश्वास था, एक वर्ड के विश्वास पे पतरस पानी पर, तूफान पर चल गया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करोगे, आप भी अपने जीवन के हर एक संघर्ष में चलने पाओगे। सेकंड चीज जो मैंने बाइबल में देखी और जो विश्वास के विषय में मैं जानता हूं, faith causes you to handle opposition. Faith causes you to handle opposition. आपके विरोध जो बातें उठती है उस पर जय विश्वास आपको देता है। हर परिस्थिति के ऊपर आपको जय देता है। हर एक इम्पॉसिबल के ऊपर आपको जय देता है। और डिसाइपल्स इतने घबराए हुए थे, उनको लगा हम मर जाएंगे, पर यीशु उसी बात पे चलता आ रहा था जिससे वे डर रहे थे। उनको लग रहा था ये लाटे हमको डुबा देगी, लेकिन जो उनको डुबा सकता था उसके ऊपर यीशु चल रहा था। पीटर ने यही बात देखा, ओ माय मास्टर इज वॉकिंग, और अगर मेरा स्वामी चल रहा है तो मैं भी चलूंगा। वाओ माय फ्रेंड, फेथ हैज दिस एक्सपेक्टेशन। मालूम, विश्वास में ये अपेक्षा होती है, जो यीशु कर रहा है वो मैं करूंगा, जो यीशु कह रहा है वो मैं कहूंगा, जो यीशु सोच रहा है वो मैं सोचूंगा, जैसा यीशु जी रहा है वैसे मैं जीऊंगा। ये विश्वास की भाषा है, ये विश्वास का लगन है, ये विश्वास की चाहत है। फेथ imitates Jesus.
यस माय फ्रेंड, विश्वास की एक क्वालिटी है, वो यीशु का अनुसरण करता है। इट इमिटेट्स जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जिसके अंदर विश्वास जागृत है वो यीशु के जैसा करना चाहता है। इस कोरोना काल में भी बीमार पर हाथ रखने का मन उसका करता, इस कोरोना काल में भी बीमार के लिए प्रार्थना करने का मन उसका करता, वो आर्थिक मंदी के समय में दूसरों की मदद करने का मन करता। व्हाई? बिकॉज फेथ इज एक्टिव इन स्पिरिट। वो विश्वास है जो यीशु के जैसा उसको किसी की समस्या का समाधान करने वाला बना दे रहा है। फेथ ट्रांसफॉर्म्स यू। फेथ तुम्हें ऑपोजिशन को हैंडल करना सिखा देता है। कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी बात तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो, बट फेथ गिव्स यू विक्ट्री माय फ्रेंड। तीसरी चीज जो मैंने विश्वास में पाई है, फेथ लुक्स एट थिंग्स द वे गॉड लुक्स एट देम। ध्यान से सुनना, विश्वास हर चीजों को ऐसे देखता है जैसे परमेश्वर स्वयं देखता है। गिनती की किताब इसके 13 अध्याय और 14 अध्याय में बड़ी खूबसूरत घटना इजराइल के दिनों में हुई। मूसा ने 12 भेदियों को भेजा, जाके कनान देश को स्पाई करके आओ। 10 भेदी वापस लौट कर आए और आकर मोसेस को एक डरावना रिपोर्ट दिए। पर यहोशू और काले वैसे 2 भेदी थे जिन्होंने डरावना रिपोर्ट नहीं दिए, एक्साइटिंग रिपोर्ट दिए। बोला वी आर वेल एबल टू टेक द लैंड। चलो उस लैंड को लेते हैं, परमेश्वर ने हमें वो लैंड दे दिया है, वो तो दूध और मधु से बहने वाला लैंड है, चलो जाकर उसको लेते हैं। 2 लोग विश्वास में वो देख रहे हैं जो परमेश्वर देख रहा है, 10 लोग डर में वो देख रहे हैं जो उनका मन उनको दिखा रहा है, जो शैतान उनको दिखाना चाह रहा। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, फेथ सीज थ्रू द लेंसेस ऑफ गॉड। विश्वास परिस्थिति को नहीं देखता, विश्वास लॉजिक की नजर से नहीं देखता, विश्वास पॉसिबिलिटीज की नजर से नहीं देखता, विश्वास कैलकुलेशन पर बेस्ड नहीं होता, विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, विश्वास परमेश्वर पर आधारित होता है और वो परमेश्वर की नजरों से देखा जाता है। इनफैक्ट फेथ यीशु का नजरिया है। विश्वास क्या है? यीशु का नजरिया है। जितने यीशु के नजरिए में चीजों को देखते हैं, विश्वास एब्सेंट नहीं रहता, उनका हृदय विश्वास में भरा रहता। इनफैक्ट क्योंकि वे विश्वास से भरे हैं, उनका नजरिया यीशु जैसा होता है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का नजरिया क्या है? वो सिंपल यीशु का नजरिया यह है, लाजर मरा नहीं, सोया है, उसको जाके उठाते हैं। बाकी लोग बोलते भाई पागल हो गया, 4 दिन हो गए, इसको गाड़ दिया है, इसमें से दुर्गंध आती होगी, क्या सोचते हो आप? वो तो मर भी गया, सड़ने लग गया होगा। लिसन माय फ्रेंड, लॉजिक स्टेट्स फैक्ट्स बट फेथ स्टेट्स पॉसिबिलिटीज। विश्वास जो संभव परमेश्वर देख रहा है वो कहता है, लॉजिक ये कहता है जो है। एक दिन एक चेला यीशु मसीह के पास आया, 5 रोटी 2 मछली लेके आया और यीशु के हाथ में दिया और बोला ये तो सिर्फ इतना ही है, इतने लोगों में इतना सा क्या काम का। सी, लॉजिक सेज कैलकुलेशन पे बेस्ड चीजों को, बट फेथ सेज बेस्ड ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने कहा इतना काफी है, धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और हजारों को खिलाई और बहुत ज्यादा बच भी गया, 12 टोपली बच भी गई। Isn't it incredible? Bible says faith sees the things like God sees. और इतना ही नहीं, फेथ रिस्क लेता है, जो परमेश्वर दिखाता उस पर कदम उठाता है, रिस्क लेता है। फेथ डिमांड्स रिस्क। कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक मैं नहीं मिला जो विश्वास का व्यक्ति है जिसने कोई जोखिम ना उठाई हो, जिसने कोई रिस्क ना उठाई हो। कितने लोग अपने जीवन में फेथ के रिजल्ट्स को नहीं देख पाते, मालूम क्यों? क्योंकि वो कभी रिस्क नहीं उठाते। Unless you learn to take risk, you will never walk in faith. विश्वास के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लो। Miracle follows the steps of faith. You know, I love this thing. Miracle follows the steps of faith. Do you know miracles are followers? They are never leaders. आश्चर्य कर्म जो है ये अगुए नहीं है, ये फॉलोअर्स है। अगुआ कौन है? फेथ। विश्वास अगुवाई करता है, आश्चर्य कर्म फॉलो करता है। Unless you walk in faith, you will never attract miracles in your life. जब हम विश्वास में आगे बढ़ते, let me tell you my friend, let me tell you, miracles follow when you take steps of faith, and disaster follow when you entertain fear. विश्वास miracles को अट्रैक्ट करता है, भय डिजास्टर को अट्रैक्ट करता है।
चॉइस हमारे ऊपर है, हम किसकी सुने। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, विश्वास आता है और वो विश्वास हमारे नजरिए को बदल देता है। वो विश्वास हमें वो चीजें दिखाता है जो परमेश्वर देख रहा है। सक्सेस लीडर नहीं है, सक्सेस फॉलोअर है उस व्यक्ति का जो विश्वास के कदम उठाता है। जब मैं गिनती की किताब इसके 14 अध्याय के 7वें वचन को देखता हूं, यहोशू और कालेब का एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता। वो कहते हैं इट इज ए गुड एक्सीडिंग गुड लैंड। साधारण लैंड नहीं है, एक्सीडिंग गुड लैंड है। मेरे प्यारो, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वायदा एक्सीडिंग गुड लैंड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लैंड में राक्षस है, बट वो राक्षस बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम है, विश्वास के लोगों के लिए अवसर है। So let's go and take that land. ओ वहां पे कोरोना है तो क्या हो गया, let's go and take that land. ओ वहां पे बिजनेस में मंदी है सो क्या हो गया, let's go and take the land. मेरे लिए परमेश्वर की प्रॉमिस है, तेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो मरुस्थल में नदियों को बहा देगा। हालेलुया। इसलिए हम परिस्थिति देख के डिसीजन नहीं लेते हैं, हम विश्वास में कदम डालते हैं और रिसोर्सेस फॉलो करते हैं। लास्ट ईयर जब पेंडेमिक हुआ, मेरे दिल में एक बोझ आया, बहुत से प्रभु के सेवकों की मदद करा जाए, आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाए। वी बिगिन टू प्रे, वी बिगिन टू बिलीव। गेस व्हाट हैपेंड? रिसोर्सेस केम। इस साल फिर से मेरे मन में आया, ओ परमेश्वर हमारी सहायता कर, अनाथों और विधवाओं की मदद करे, गरीब लोगों की मदद करे, बहुत से लोगों की मदद करने पाए, पासवानों की मदद करने पाए। अगेन द रिसोर्सेज बिगिन टू कम। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो आप फेथ करोगे ना, उससे बड़े रिजल्ट्स देगा। He will give you over and above what you believe. जब भी हम बिलीव करते हैं, परमेश्वर खुश होता है, हमारे मांगने से अधिक हमको देता है, हमारे कल्पना से अधिक हमको देता है। We must believe God for great things are yet to be done. परमेश्वर का वचन यहां पे 14 अध्याय के 24 वचन में ये कहता है, गिनती की किताब 14 के 24 में, My servant Caleb has a different spirit. मेरा सर्वेंट जो कालेब है उसके अंदर एक अलग आत्मा है। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस डिफरेंट स्पिरिट। ये डिफरेंट स्पिरिट जो है, ये आत्मा विश्वासी का आत्मा है। ही हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। हिज स्पिरिट इज अ बिलीविंग स्पिरिट। मेरा आत्मा जो है विश्वास करने वाला आत्मा है। ये अनबिलीफ का आत्मा नहीं है, ओ ये डर का आत्मा नहीं है, ये संकोच का आत्मा नहीं है, ये सिनिकल आत्मा नहीं है, बिलीवर का आत्मा है। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। मेरा आत्मा एक बिलीवर आत्मा है और वो यीशु पर विश्वास करता है, हर बातों को यीशु से चाहता है। मेरा मन एक बिलीवर मन है, वो यीशु पर विश्वास करता है। जो उसे महसूस होता उस पर नहीं, जो उसे समझ आता उस पर नहीं, जो यीशु कहता उस पर। ओ हालेलुया। जब ये आत्मा और ये मन विश्वासी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, एक डायनामिक ड्यू बन जाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। माय फ्रेंड, परमेश्वर के वचन में जब मैं ये देखता हूं, द बाइबल सेज माय सर्वेंट कालेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। मैं सोचता परमेश्वर कालेब को देखकर बोलता इसमें एक भिन्न आत्मा है। आज की परिस्थिति में हमको देख के परमेश्वर का आत्मा क्या कहता होगा? Is God saying the same thing for you and I? कि इसमें एक डिफरेंट आत्मा है, या बाकी लोग से अलग है, इसकी सोच बाकी से अलग है, इसकी चाहत बाकी से अलग है, इसका नजरिया बाकी से अलग है, ये यीशु के जैसा है। I believe. When we believe, we can live like that. मालूम, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं हम यीशु के जैसे होंगे, बट 1 John 4:17 कहता है जैसा वो है वैसे ही इस पृथ्वी पे हम भी है। इट डजंट से हम होंगे, हम है ये कहता है। जो ऐसा बिलीव करता उसके लाइफ में यीशु जैसे रिजल्ट होते। जो बिलीव करता वो यीशु जैसा है, वो यीशु जैसे सोचता, यीशु जैसे चलता, यीशु जैसे कार्य करता। आज अपने हालात को देख के अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो मेरे प्यारो, परमेश्वर यीशु को देखकर अपनी आइडेंटिटी बनने दो, वो आपकी पहचान है। जब मैं वचन में देखता हूं, जीसस ऑलवेज सॉ व्हाट फादर सॉ। Isn't it incredible? यीशु ने कहा मैं वही करता हूं जो मैं पिता को करते देखता। In other words, यीशु ने देखा पिता क्या करता है। He did not imitate बाकी के फरीसी क्या कर रहे हैं। He did not imitate हाई प्रीस्ट क्या कर रहा। He did not imitate बाकी के लोग रिलीजियस लीडर्स उन दिनों के क्या कर रहे हैं। Jesus focused on Father.
विश्वास हमेशा आपका नजर लोगों से उठाकर परमेश्वर पर लगाएगा। दैट इज एन एबिलिटी फेथ हैज। वो परमेश्वर पर आपकी नजर लगाए रखता। और यीशु पिता को देखता था। यू मस्ट ट्रेन योरसेल्फ टू सी व्हाट गॉड इज डूइंग। विश्वास हमको प्रशिक्षित करता है यीशु पर नजर लगाए रखने के लिए। और जब हम यीशु पर नजर लगाए रखते हैं, जब हम देखते हैं यीशु क्या कर रहा, बाइबल में पढ़ते जाते व्हाट इज जीसस डूइंग, और हम देखते वाह यीशु ये किया, मैं भी ये करूंगा। और फेथ तुमको ये जिज्ञासा देता, ओ तू भी ये कर सकता। यीशु का आत्मा तेरे अंदर है। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा तेरे अंदर है। वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर यरदन में उतरा, वही पवित्र आत्मा पिता ने तुझे दिया है। इज द सेम होली स्पिरिट, सेम पावर। और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ को कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो तेरे अंदर है। कम ऑन, यू कैन डू इट। यीशु के नाम पर यह विश्वास करता और विश्वास में कदम डालने लगता। द बाइबल डिक्लेयर्स, जब यीशु पिता को देखता, पिता के जैसा करता। जब कलीसिया यीशु को देखेगी, यीशु के जैसे बनेगी और करने लगेगी। दैट्स द ब्लेसेड पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। व्हेन यू सी व्हाट ही सीज, यू विल डू व्हाट ही डज। Listen carefully. When you see what Jesus sees, you will do what Jesus do. And when you do what Jesus do, you will get what Jesus got. बहुत सिंपल बात है मेरे प्यारो। जब आप वो देखोगे जो यीशु ने देखा, तो आप वो करोगे जो यीशु ने किया, और आपको वही मिलेगा जो यीशु को मिला। एजिकियल की किताब में हम देखते, एक दिन परमेश्वर का आत्मा प्रॉफेट एजिकियल को उठाकर सूखी हड्डियों की तराई में लेकर गया और उससे कहा, बेटा तुझे क्या दिखाई देता? एजिकियल कहता, मुझे सूखी हड्डियां दिखाई देती। There was no faith in that. Reality जो दिख रहा वो बोल रहा है, पर परमेश्वर को क्या दिखाई दे रहा? एक जीवित सेना दिखाई दे रही। Now God began to impute faith in Ezekiel. उसको faith डालने लगता। He says, क्या ये जी सकती है? Wow. Can these bones live? जहां evidence of life खत्म हो गया है, can then a life come back again? Ezekiel कहता, प्रभु तू ही जानता है। He says, son, prophesy. भविष्यवाणी कर देख क्या होता है। और एजिकियल ने भविष्यवाणी की आज्ञा मानी। फेथ गिव्स यू एबिलिटी टू एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड। विश्वास आपको योग्यता देता है कि परमेश्वर ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको आप फॉलो करें। और जब आप डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते तो डिवाइन रिजल्ट्स मिलते। एजिकियल की आंखों ने देखा हड्डियों पर मांस चढ़ते हुए, नसें चढ़ते, स्किन चढ़ते हुए, और उनका आत्मा उनमें समाते हुए, और जीवित एक सेना को खड़ा होता हुआ एजिकियल ने देख लिया। माय फ्रेंड, गॉड कैन डू दिस। समटाइम्स जब हम ड्राई बोन्स में रहते हैं, उन वैलीज को देखते रहते, सूखा को देखते रहते, आशाहीन परिस्थिति को देखते रहते, यू नो व्हाट हैपेंस? ऐसी परिस्थिति में हमारी नजर उस परिस्थिति में लगी रहती है और हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। धन्य है एजिकियल जो तराई में खड़ा है पर परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा। आई प्रे कि हम में से हर एक व्यक्ति जो अपने तूफान में घिरा है, जो तराई में है, जो समस्या में है, जो परिस्थिति में है, जो कठिन समस्या में है, वो कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, लेट द वर्ड ऑफ गॉड रीच योर ईयर। आज सुबह जब परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, इसे पकड़ लो। जब पतरस ने यीशु के वचन को पकड़ा, कम वो पानी पे चलने लगा। जब एजिकियल ने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, प्रोफेसाय, वो उसने असंभव को संभव होते देखा। माय फ्रेंड, आज इस वचन को पकड़ ले, ये तेरे जीवन की बागडोर को बदल देगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉन्ग ड्यूरेशन जब होने लगता समस्या में, टेंडेंसी ये होती है कि हम अपने हार्ट को लूज कर देते, डिस्करेज हो जाते, निराश हो जाते, हताश हो जाते। नेवर लूज योर हार्ट, नेवर लूज योर हार्ट। व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय, इसका 28 वचन, इज़राइली कहने लगे, हम कहां जाए, हमारे भाइयों ने हमारा मन कच्चा किया है। Where can we go? Our brothers has discouraged us. Allow Holy Spirit to paint a picture in your heart, my friend. पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि तेरे हृदय में एक चित्र को डाल दे। मालूम विश्वास क्या करता है? विश्वास वो कल्पना जो आपके विषय में पिता के हृदय में है, उन कल्पनाओं को आपके हृदय में पेंट कर देता।
जो प्लान्स परमेश्वर के आपके जीवन के लिए उनको आपके हृदय में डाल देता। दैट इज व्हाट फेथ डज। और जब वो चित्र आपके अंदर आ जाता, जब एक पिक्चर आपके अंदर आता, वो पिक्चर आपकी वास्तविकता से ज्यादा आपकी नजरों पर बना रहता। वो जोसेफ के अंदर एक पिक्चर आया, मैं तुझे ऊंचे उठाऊंगा। जब जोसेफ सूखे कुएं में गया, बड़बड़ाया नहीं। क्यों? ही वॉज नॉट लिविंग बाय द इमेज दैट ही सॉ आउटसाइड, ही वॉज लिविंग बाय द इमेज दैट ही सॉ इनसाइड। और जो वो बाहर देख रहा था उससे नहीं जी रहा था, जो वो अपने अंदर छवि को देख रहा था उससे जी रहा था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक चित्र उसके अंदर पेंट किया था, एक दिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। जब जोसेफ को झूठा आरोप लगाकर उसको कैद में डाल दिया गया, वो बौखलाया नहीं, गड़बड़ाया नहीं, चिड़चिड़ाया नहीं, परेशान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चित्र था। वो बाहर के प्रिजन सेल को देखकर नहीं जी रहा था, अपने अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा खोदे हुए चित्र को देखकर जी रहा था। मेरे प्यारो, जब डैनियल सिंहों की मान में डाल दिया गया, बौखलाया नहीं, निराश नहीं हुआ, गड़बड़ाया नहीं। क्यों? विश्वास में स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि वो सिंहों को देखकर नहीं जी रहा था, अपने अंदर परमेश्वर ने जो पिक्चर पेंट किया है उसको देखकर जी रहा था। माय फ्रेंड, जिस दिन आप समस्याओं में घिर जाते हो, आप किसको देखकर जीते हो? डू यू लिव बाय सर्कमस्टेंसेस और डू यू लिव बाय द पेंट द पिक्चर दैट गॉड हैज पेंटेड इन योर हार्ट? कई बार मेरे जीवन में मैं कठिन दौर से होकर गुजरता हूं, आर्थिक समस्या से होकर गुजरता हूं, और जब आर्थिक समस्या मेरे जीवन पर कब्जा करने लगती है, आई डू नॉट लुक एट माई बैंक बैलेंस, आई लुक एट द इमेज गॉड प्लेस्ड इन माई हार्ट। तू लेने वाला नहीं, जोशुआ तू देने वाला ठहरेगा। आई रिमेंबर, पवित्र आत्मा ने एक दिन जब मैं पूना में था, 1996 की बात है, अकेला एक छोटी सी टेकड़ी पर जाकर प्रार्थना कर रहा था, एक पेड़ के किनारे नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहा था, एंड होली स्पिरिट विस्पर्ड इनटू माय ईयर सेइंग, सन, तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला होगा। हालेलुया। आई ऑलवेज गेट बैक टू व्हाट प्रॉमिस इन माय हार्ट। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसा अनुभव है, पवित्र आत्मा की आवाज है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, जिसको आप पकड़ के रख सकते हैं कठिन दौर में। गोइंग बैक टू दैट इमेज जो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे अंदर डाला है, इट विल हेल्प यू नॉट टू लूज हार्ट। कई बार लोगों की बातचीत ऐसी होती है जो आपको नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन आप उस इमेज पर जाते हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया है। मुझे याद है, कई दर्शन मेरे जीवन पर पवित्र आत्मा ने दिए, कई भविष्यवाणी प्रभु के सेवकों ने मेरे जीवन पर कहे, एंड आई डोंट लुक एट द रिजल्ट्स दैट आई एम सीइंग जो मुझे डिस्करेज करते हैं। आई लुक एट दोस प्रोफेसी एंड से वी आर वन स्टेप क्लोजर टू हैपनिंग ऑफ दिस। ओह प्रभु मुझे हिम्मत देता है, मुझे बल देता है, मैं अपने टीम को समझाता हूं, ओह ये पवित्र आत्मा कलीसिया को यहां ले जा रहा था। आज की स्थिति को मत देख, जो होने वाला है उसको देख, जो होने वाला है उसको देख, क्योंकि पवित्र आत्मा ने एक पिक्चर तेरे अंदर डाला है। आई प्रे कि आज वो पिक्चर यदि आप भूल गए तो पवित्र आत्मा याद दिलाए, फिर एक बार पर्दा उठा दे उस पिक्चर पे से, तेरे आत्मा में फिर एक बार एक नई ताजगी डाल दे, एक नया फायर डाल दे, और वो तेरी बुलाहट के दिन जो दर्शन पवित्र आत्मा ने तेरे अंदर डाला, वो दर्शन तुझे स्मरण आने पाए, और इस विपत्ति के काल में वो दर्शन की आग तुझे चलाने पाए। उसे पकड़ कर रख। ग्रेट थिंग्स आर येट टू हैपन इन योर लाइफ। अद्भुत चीजें होंगी। क्या करना है मुझे इस दर्शन में? देखो बाइबल क्या कहती है, ड्यूटरनॉमी 128, हमारे भाइयों ने हमारा मन कच्चा किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य के शब्द को परमेश्वर के शब्द से ऊंचा होने नहीं देना। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर के शब्द, विश्वास परमेश्वर के शब्दों को पकड़ कर रखता है, मनुष्य के शब्दों को नहीं, परिस्थिति के शब्दों को नहीं, खुद के विचारों को भी नहीं, खुद की भावनाओं को भी नहीं, परमेश्वर की बातों को पकड़ के रखता है। दैट इज द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ फेथ। जब मैं विश्वास की बात करता हूं, दूसरा राजा में एक कहानी है, और चौथे अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, शुनेम करीनी का बेटा मर गया, वो अलीशा के पास गई। अलीशा ने गेहजे को बोला, एक काम करिए, मेरी लाठी ले और दौड़ जा, और उस बच्चे को जहां रखा है ऊपर की अटारी में वहां जा, और उसके मुंह पर ये लाठी रख दे। एक इंस्ट्रक्शन अलीशा ने गेहजी को दिया, मार्ग में किसी से बातें मत करना। सेम इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूका इसके 10वें अध्याय के 4थे वचन में, जब उसने उनको 2 by 2 दो कर 70 लोगों को सेवकाई में भेजा,
तो उस समय में उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया, मार्ग में कोई तुमसे बात करे तो उससे सलाम मत करना। डू नॉट सल्यूट एनीबडी, डू नॉट टॉक टू एनीबडी। क्यों ये इंस्ट्रक्शन दिया? इसका मतलब यह है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब कोई आपसे बात करने लगे जो विश्वास से परे हो, उन पर कान मत देना। जो आपके दर्शन से परे हो, उन पर कान मत देना। क्यों? क्योंकि लोगों की बातों को यदि सुनोगे और भरोसा करोगे तो स्पिरिचुअल अबॉर्शन हो जाएगा। जो बातों से आप प्रेग्नेंट हो वो डिलीवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जो यीशु ने कहा उसको पकड़े रखोगे, विश्वास में बने रहोगे, तो ग्रेट चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। माय फ्रेंड, द बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। डू नॉट सल्यूट एनीवन ऑन द वे। किसी चीज को रिस्पेक्ट मत दे, परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रख। जब यीशु लाजर के कब्र पर आया, लोग कह रहे थे वो मर गया। जीसस डिडंट पे अटेंशन टू देम। यीशु ने कहा, मरा नहीं, सोया है, हम अपने दोस्त को उठाने चलते हैं। जब यीशु याईर की बेटी के घर गया, उसकी बेटी मर गई थी, मातम करने वाले रो रहे थे। उसने पूछा, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, बेटी मर गई। यीशु ने कहा, बेटी मरी नहीं, सो रही है। They began to laugh at Jesus. मेरे प्यारों, लोग तुम पर हंसते तो हंसने दो, लेकिन विश्वास के नजरिए को पकड़ कर रखो। यीशु मसीह ऐसा ही था। Do you believe that I can do this? ये यीशु मसीह का क्वेश्चन था। Do you believe कि मैं ये कर सकता हूं? When they said yes, he performed it. Isn't it amazing? Jesus believed he can do this. यीशु विश्वास करता था। आपको याद है यूहन्ना 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना ने जब when I read Acts chapter 3, प्रेरितों के काम की किताब इसका 3 अध्याय, इसमें पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को देखकर क्या कहा? उससे कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो है तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। What we have, we give you. It's interesting to know faith causes you to give what you have. विश्वास आपको प्रिपेयर्ड रखता है। विश्वास आपकी परिभाषा को बदल देता है। यीशु का लैंग्वेज था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। Faith gives you ability to be confident कि आप जो बोलेंगे वो होगा, आप जो करेंगे वो होगा। That is what faith does. ओ यीशु का मानना था, जिसको पुत्र आजाद करता है वो आजाद है। वाओ मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास हमारे जीवन में हमको ठोस रीति से खड़ा कर देता है। बिलीफ सिस्टम बदल देता है। हम वो बिलीव कर सकते हैं जो पिता बिलीव करता है, जो परमेश्वर बिलीव करता है, और वही रिजल्ट को देख पाते हैं जो यीशु देख पाता है। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड। बिलीव दिस प्रॉमिस माय फ्रेंड। विश्वास इस बात को पुख्ता आपके अंदर डाल देता है। पांचवी चीज जो विश्वास आपके जीवन में करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, पांचवी चीज जो मुझे समझ में आई विश्वास को लेके, वो है अपने विश्वास को ताजा कैसे रखना। जल्दी से ये 7 बातें बताऊंगा कि अपने विश्वास को ताजा कैसे रखना, क्योंकि यदि इन 7 बातों को आप प्रैक्टिस करोगे, आपका फेथ स्ट्रांग बना रहेगा, आपका फेथ वेव नहीं करेगा, आपका फेथ दुचित्ता नहीं रहेगा, आपका फेथ स्थिर रहेगा, जड़ की नहीं मजबूत पकड़ कर रखेगा। देखिए, पहली बात, परमेश्वर के साथ कंसिस्टेंट वॉक होना चाहिए। परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाएं। यह जान रखे, परमेश्वर की संगति में विश्वास जागृत रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास को मांगना नहीं पड़ता, विश्वास एक्टिव रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फेथ इज प्रेजेंट। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें। पहली बात, कॉन्स्टेंट हियरिंग डेवलप फ्रॉम द लॉर्ड। हर सुबह पवित्र आत्मा तू बोल, तेरा दास सुनता है। हर दोपहर, ओ लॉर्ड स्पीक टू मी। हर शाम, लॉर्ड स्पीक टू मी। तुम्हें मालूम है रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। Faith comes by hearing, and hearing the word of God, word of Christ. I want you to know, faith doesn't come by having heard. ओ मेरे दादाजी ने सुना था तो मेरे पास विश्वास है, ऐसा नहीं है। मेरे पिता ने सुना था तो मेरे पास विश्वास, ओ 20 साल पहले मैंने ये सुना था तो मेरे पास विश्वास है, ऐसा नहीं है। Faith comes by hearing now. Now. It's a present continuous tense. इसलिए इब्रानी इसके 11 अध्याय के पहले वचन में इससे लिखा है now faith. Faith is always present tense. वो कभी पास्ट में नहीं है।
वो कभी फ्यूचर में नहीं है, इट इज नाउ। द बाइबल सेज नाउ फेथ। जब विश्वास हम करते हैं, प्रभु से सुने। फर्स्ट थिंग, डेवलप हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड। रोज जब परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं, हियर फ्रॉम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तू क्या बोल रहा है, प्रभु तू मुझसे क्या बात कर रहा है। ओ लॉर्ड स्पीक टू मी। जो प्यासा है उसको पवित्र आत्मा देगा। यीशु ने कहा जो प्यासा है आकर सेतमित मुझसे ले, जीवन का जल पी लो। माय फ्रेंड, पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। इफ यू आर अटेंटिव टू हिम, ही विल स्पीक टू यू। सेकंड चीज, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर मनन कर। भयानक परिस्थिति पर नहीं, न्यूज पर नहीं, रिश्तेदारों की बातों पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं, परमेश्वर के प्रोमिसेस पर मनन कर। when you meditate on the promise of God, God will do great things. Meditate on the promise of God. यहोशू 1:8 में ऐसा लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना का मतलब कभी ना। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की जब तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इवन इन पैंडेमिक तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। क्यों? बिकॉज यू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ओ परमेश्वर के वचन पर मनन कर मेरे प्यारो। जब परमेश्वर के वचन पर कांस्टेंट हम मनन करते हैं, कांस्टेंट फेथ में बने रहते हैं। आवर फेथ इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव। उस पर रस्ट नहीं लगता। परमेश्वर के वचन पर मनन करना हमारी तलवार को चमका कर रखता है, हमारे विश्वास को चमका कर रखता है। माय फ्रेंड, तीसरी चीज जो मैं करता हूं वो है कांस्टेंट फेलोशिप विद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना, कांस्टेंट प्रभु के अनुग्रह में बने रहना, पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहना, चलते फिरते उठते बैठते पवित्र आत्मा से बातचीत करते रहना। ओ ऐसे बात करना जैसे वो वास्तव में आपके साथ एक मित्र के रूप में है। उससे बात करते रहना, पवित्र आत्मा तू क्या सोचता है। जब कुछ पका रहे, पवित्र आत्मा व्हाट डू यू थिंक। और जब काम कर रहे, पवित्र आत्मा व्हाट डू यू थिंक। जब किसी को लेटर लिख रहे, ईमेल लिख रहे, पवित्र आत्मा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ओ पवित्र आत्मा मुझे ये करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और जब पवित्र आत्मा से कांस्टेंट इस रीति से एक रिलेशन डेवलप करोगे, यू विल सी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गाइडेंस कम। पवित्र आत्मा आपको बताता रहेगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप। मैं प्रभु से पूछता रहा, प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता रहा। चौथी चीज, डिवाइन कनेक्शन डेवलप करो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाओ जो आत्मा में चलते हैं, जो विश्वास में चलते हैं। लिसन माय फ्रेंड, जिसके जीवन में फेथ में चलने का ग्रेस है, जब आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं, वो ग्रेस आपके ऊपर भी रिलीज हो जाता। मेरे जीवन में ये ग्रेस रिलीज होने लगा जब मैं विश्वास के जायंट्स के साथ चलने लगा। हमारे जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो विश्वास में चलते हैं। इम्पॉसिबल उनके लिए कुछ नहीं है। दे बिलीव अगेंस्ट एवरी ऑड, और उनके लाइफ में उसके फल दिखाई देते हैं। यू नो, व्हेन यू मीट दोज पीपल, वॉक विद देम टाइट। कुछ भी करो उनके करीब रहने का। गो बिकम फ्रेंड्स विद देम। कभी कभी हमको लगता है अरे ये कैसे लोग हैं, अरे वो कैसे लोग हैं, लोग क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है। डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू फाइंड अ मैन हु इज फेथफुल इन द हाउस ऑफ गॉड, जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर के विश्वास में चलता है, उसके साथ एसोसिएट करो। ऐसी स्त्री मिल जाए जो विश्वास में स्थिर है, उसके साथ एसोसिएट करो। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो फेथ रब्स ऑन अनदर पर्सन। विश्वास दूसरे पर रब कर जाता है। वो विश्वास जो उसमें वो आप पर ओवरफ्लो कर जाएगा और वही परिमाण आपके जीवन में पाया जाएगा। सो डेवलप डिवाइन कनेक्शन। आयरन शार्पन्स द आयरन, बाइबल सेज। लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को तेज कर डालता है। विश्वासी के एसोसिएशन में रहो। इन पैंडेमिक में बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। उन लोग ने आपस की संगति को छोड़ दिया है। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, चाहे जूम के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन विश्वासियों के संपर्क में बने रहो। चाहे फोन के माध्यम से क्यों ना हो, विश्वासियों के संपर्क में बने रहो। टॉक टू ईच अदर, कनेक्ट विथ ईच अदर। कोशिश करो भाईचारे की प्रीति बनी रहे। एक दूसरे का मिलना बंद मत करो, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। Why? Because faith is transferable. आज जब आप सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना ये, लॉर्ड जो फेथ तूने मेरे अंदर स्थिर किया है, ये फेथ उनके अंदर रिलीज कर दे, कि ये विश्वास उनके अंदर रिलीज होने पाए। प्रभु का आत्मा ऐसा ही करे। पांचवी बात जो मेरे जीवन में मैंने देखी है वो है ऑलवेज सेट हायर गोल्स। विश्वास में एक एबिलिटी है, मालूम, वो आपके क्षमता को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है।
आपने अगर 5,000 रुपए के लिए विश्वास किया तो अगली बार पवित्र आत्मा बोलेगा अब 10,000 के लिए विश्वास कर। 10,000 के लिए किया तो पवित्र आत्मा बोलेगा अब 20,000 के लिए कर। 20,000 के लिए किया तो पवित्र आत्मा बोलेगा अब 50,000 के लिए कर। अब 50, फेथ ऑलवेज ग्रोज, इट ग्रोज इन द कैपेसिटी। मैंने देखा एंकल डीप वाटर में आप खड़े हो जाओ तो नी डीप वाटर के लिए स्वर्गदूत आगे जाता है। आप नी डीप वाटर में खड़े हो जाओ तो स्वर्गदूत आगे कमर तक के पानी के लिए चला जाता है। और कमर तक के पानी में खड़े हो जाओ तो स्वर्गदूत इतना लेके चला जाता है कि अब तैरना पड़ेगा। माय फ्रेंड, आत्मिक जीवन में विश्वास एक सीमा पे आपको नहीं रखता। विश्वास वो सीमा को आगे बढ़ाता रहता, आगे बढ़ाता रहता, आगे बढ़ाता रहता, आगे। यदि आपके प्रार्थना से बुखार अच्छा हुआ, नेक्स्ट टाइम फेथ आपको बोलेगा नाउ प्रे फॉर अ डेफ ईयर। आपके प्रार्थना से बहरा चंगा हो, नाउ होली स्पिरिट विल से अब ब्लाइंड आई के लिए प्रार्थना कर। ब्लाइंड आई अच्छा हो गया तो अब पवित्र आत्मा बोलेगा कैंसर के लिए प्रार्थना कर। कैंसर वाला अच्छा हो गया, पवित्र आत्मा बोलेगा मुर्दे के लिए प्रार्थना कर। मुर्दा अच्छा हो गया, अब पवित्र आत्मा बोलेगा हॉस्पिटल खाली होने के लिए प्रार्थना कर। बट पवित्र आत्मा हॉस्पिटल खाली हो गया तो अब पवित्र आत्मा बोलेगा शहर बदल जाने के लिए प्रार्थना कर। सी, होली स्पिरिट विल कंटिन्यू टू रेज अप द स्टैंडर्ड। फेथ कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता। Know this, faith never gets satisfied. Never it is satisfied. जो विश्वास satisfied हो गया वो पुराना हो गया, उसको एक्सपायरी डेट लग गया। लेकिन जो विश्वास सेटिस्फाई नहीं होता वो पवित्र आत्मा से और चाहता है और ज्यादा हायर टारगेट्स को रखता जाता है, हायर टारगेट्स को। मैं अपने हर जीवन के पहलू में आई कीप हायर टारगेट्स। अगर मैंने एक घर लिया, आई कीप हायर टारगेट्स। लॉर्ड, आई एम गोना हैव अनदर वन, ताकि मैं दूसरों को गिफ्ट देने पाऊं, ताकि मैं दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने पाऊं। आई ऑलवेज कीप हायर टारगेट्स। प्रभु, इस साल मैंने और मेरी वाइफ ने इतना तेरे राज्य में दिया, अगले साल हम इससे अधिक देना चाहते हैं। वी सेट अप अ हायर गोल। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे चर्च में 4 लोगों का स्टाफ है, नेक्स्ट ईयर वी वांट 8 पीपल स्टाफ, एंड वी टेक स्टेप ऑफ फेथ। और पवित्र आत्मा बढ़ाता है। ओ प्रभु, हमारा टेलीविजन प्रोग्राम हफ्ते में 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, अब हम डेली टेलीविजन पे जाना चाहते हैं। वी सेट अप अ टारगेट। ओ प्रभु जी, हम अब विधवाओं की मदद करना चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा वो मदद करता। प्रभु, हम पासबानों की मदद करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा वो मदद कर देता। ओ लॉर्ड, अब हम अपने शहर से बाहर लोगों की मदद करना चाहते हैं। लॉर्ड हेल्प्स, कॉन्स्टेंटली एक के ऊपर लहर बढ़ते जाती है। और पवित्र आत्मा हमारे क्षमता को विश्वास करने की बढ़ा सकता है। पहले मैं 50,000 के लिए विश्वास करता था, आज मैं 5 लाख हर महीने के लिए विश्वास करता हूं। एंड बिलीव मी, एवरी मंथ गॉड शोज अप सुपरनैचुरली। Isn't it beautiful? इतना अद्भुत है हमारा परमेश्वर कि हमको विश्वास में आगे बढ़ाता ले जाता है। आने वाले दिनों में गॉड विल गिव अस कैपेसिटी टू बिलीव फॉर 5 crores, उसके राज्य की बढ़ती के लिए। मेरे प्यारो, विश्वास में रुकना नहीं। 50 विश्वासी हो गए, बस बहुत हो गया, नहीं, अब 100 विश्वासी, 100 हो गए, अब 200 विश्वासी, 200 हो गए, अब 500 विश्वासी। वी आर गोना ग्रो इन द किंगडम ऑफ गॉड। वी आर गोना ग्रो इन द किंगडम ऑफ गॉड। छठवीं बात जो विश्वास ने मुझे सिखाई वो है कंटिन्यू टू एक्सरसाइज योर फेथ। रोज विश्वास में कुछ ना कुछ नया कदम करना। ऑलवेज डू, ऑलवेज स्ट्रेच योर सेल्फ, एक्सरसाइज योर फेथ। अपने विश्वास को ठंडा होने नहीं देना, एक्सरसाइज करते रहना, कांस्टेंट करते रहना। एक प्रभु के सेवक है जिनका नाम टॉड वाइट है। जब मैं उनसे मिला यूएस में, उन्होंने मुझे बताया, जोशुआ, पहले 1000 लोग जिनके लिए मैंने प्रार्थना की चंगे नहीं हुए, बट उसके बाद सब लोग चंगे होने लगे। And I begin to wonder, 1000 लोगों के लिए इस आदमी ने प्रार्थना की और चंगाई नहीं देखी। अगर हम प्रार्थना करने लगे, 2-3 को चंगाई नहीं मिली तो हम डिस्करेज होकर बैठ जाते हैं। माय फ्रेंड, फेथ कंटिन्यूज टू अटैक। फेथ लगातार लगा रहता, फेथ करवाता है। फेथ एक्सरसाइज के जैसा नियमित करते रहना, कांस्टेंट। स्पीक व्हाट यू वांट टू सी, बोलते रहना। फेथ आपको पॉजिटिव कन्फेशन कराता है। फेथ आपको इम्पॉसिबल के विरोध बात कराता है। फेथ आपके जीवन में इन बातों को कराता है। 7वीं चीज जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की वो है कांस्टेंट ओबीडियंस टू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ होली स्पिरिट एंड द वर्ड ऑफ गॉड कीप्स माय फेथ फ्रेश। लगातार जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं पालन करता रहता हूं, परमेश्वर के वचन का पालन करते रहता हूं, मेरा विश्वास स्ट्रांग बना रहता है। इट्स इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। जब मैं वचन में पवित्रता ही के जीवन को जीता हूं, मेरा फेथ एक्टिव रहता है। जब मैं वचन में ग्रैटिट्यूड के जीवन को जीता हूं, मेरा फेथ एक्टिव रहता है। जब मैं वचन में लॉयल जीवन को जीता हूं, मेरा फेथ एक्टिव रहता है। वो पवित्र आत्मा मेरे एक्टिव फेथ में काम करते रहे। इट्स एक्साइजिंग।
It's I exercise it. मेरे प्यारों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता, अपने फेथ को परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता में डाल दो, और जितना आप वचन के आज्ञा मानोगे उतना फेथ कांस्टेंट एक्टिव बना रहेगा। 7 चीजें जल्दी से: कांस्टेंट हियरिंग, कांस्टेंट मेडिटेशन ऑन द वर्ड, कांस्टेंट फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, डिवाइन कनेक्शन में कनेक्टेड रहना, हमेशा हायर गोल सेटअप करते रहना, पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड। 6वीं बात, एक्सरसाइज करते रहना अपने फेथ को, और 7वीं बात, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में बने रहना। As you live these 7 principles, you will walk out of crisis of faith. My friend, my faith is stirred up to see great things. यदि आज ये विश्वास के वचन को आपने स्वीकार किया है, ये वचन के बीज आपके जीवन पर 1000 गुना फल लाएंगे। I pray Holy Spirit will remind you of everything, और आपके जीवन के दिन बदल जाए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। Father, I pray in Jesus name, जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया, ये वचन मैंने आपके प्रियो को सुना दिया। आज परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में प्रभावशाली रूप से कार्य करे, इनकी मुलाकात आपसे होने पाए प्रभु, और पवित्र आत्मा वो फेथ इनके अंदर डिपॉजिट कर दे। आज प्रभु यीशु, तेरे वचन को इन्होंने सुना है, और प्रार्थना करता हूं ये वचन इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। थैंक यू गॉड, आई रिलीज इम्पार्टेशन ऑफ फेथ अपॉन देयर लाइफ, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे शुभ संदेश टीवी चैनल पर वॉकिंग ऑन द वे नाम से हमारा शो आता है। उसे ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय। you.